हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट 31 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर हमारा है 8 मोशन एंड टुडे वील डिस्कस अबाउट एक्सेलरेशन। In our previous worksheet, we have discussed about distance and displacement. Along with that, uniform and non-uniform motion. So as we know, in case of a uniform motion, there is no change in the velocity of an object with respect to time. But in case of non-uniform motion, for example, like a car is traveling on a road, and in case if there is more traffic, so its velocity keeps on changing with time. So when the velocity changes with time, another physical quantity is known as, that is the acceleration, and acceleration is represented by a. Now the change in velocity, that is we are saying acceleration is equals to change in velocity per unit time. And if suppose we are having final velocity which is represented by v, initial velocity by u, so when final velocity is subtracted from the initial velocity and divided by a time t, then comes out to be acceleration, and the formula is a is equals to v minus u upon t. SI unit of acceleration is meter per second square. जैसा कि हमने अपनी पिछली वर्कशीट में भी बात की थी एक समान गति और असमान गति की, तो एक समान गति पर जो वस्तु चल रही है उस वस्तु का वेग समय के साथ समान रहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। लेकिन असमान गति, फॉर एग्जाम्पल अगर सड़क पर आप किसी कार में या बाइक में जा रहे हैं और अगर रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है तो आपका वेग समय के साथ बदलता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक अन्य भौतिक राशि की जिसको हम कह रहे हैं त्वरण। इसको हम स्मॉल a के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी भी वस्तु की प्रति इकाई समय में जो वेग में परिवर्तन आता है उसको हम कहते हैं त्वरण, और इसका सूत्र है त्वरण का, त्वरण बराबर है वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। अब मान लो कि अंतिम वेग वस्तु का v है और प्रारंभिक वेग अगर उसका u है, समय उसने लिया t, तो हमारा सूत्र बनता है a बराबर v माइनस u बटा t, और त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। नाउ व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन? Now as we have seen, final velocity is v and initial velocity is u. So if the final velocity is more than the initial velocity, so as we also see in our formula, the acceleration will comes out to be positive and it is known as accelerated motion. But if final velocity v is less and initial velocity u is more, then the acceleration value comes out to be negative. And in this case the motion is known as retardation motion. As we are seeing the example below, let us assume that a car is at rest and when it is started it attains a velocity of 5 meter per second in 2 seconds. So what will be the acceleration? As we know that the car is at rest, so initial velocity is 0, final velocity is 5 meter per second, time taken is 2 seconds. So putting the formula of acceleration, a is equals to v minus u upon t, that gives you 5 minus 0 upon 2. 5 upon 2 is giving plus 2.5 because v is greater than u. So the answer comes out to be 2.5 and that is in positive. So here the motion is the accelerated motion. जैसा कि अभी हमने बात की थी, अंतिम वेग हमारा v है, प्रारंभिक वेग u है, तो अगर अंतिम वेग अधिक होता है तो हमारा त्वरण धनात्मक होता है जिसे हम त्वरित गति भी कहते हैं, और यदि अंतिम वेग v प्रारंभिक वेग u से अगर कम होता है तो त्वरण हमारा माइनस में आता है, यानी कि ऋणात्मक होता है जिसे हम मंदन गति भी कहते हैं। अब या इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर एक बस रुकी हुई है
और जब वह चलने लगती है तो वह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है 2 सेकंड में। तो उसका त्वरण कितना होगा? प्रारंभिक वेग हमें पता है क्योंकि वस्तु या बस रुकी हुई थी तो उसका u 0 होगा, अंतिम वेग 5 मीटर प्रति सेकंड और समय होगा 2 सेकंड। तो यहाँ पर जब हम त्वरण का सूत्र लगाएंगे तो हमारा सूत्र होगा v माइनस यू बटा टी, यानी 5 माइनस 0 बटा 2 जो आएगा प्लस 2.5। तो प्लस क्या बता रहा है कि हमारी जो u है वो कम है और v यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़्यादा है। अब हम एक्सेलरेशन या त्वरण को समझते हैं कि किस तरह से वह यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज ग्राफ। First, there is a velocity time graph and you are seeing a straight line. If we observe the graph carefully, the time in 1 second it travels a distance or it attains a velocity of 4 meter per second. When time is 2 seconds, then it reaches to 8 meter per second. With 3 seconds, it is traveling with a velocity of 12 meter per second. It shows that equal velocity is attained in equal interval of time. So as a result, the acceleration comes out to be uniform. But as we see the third graph, as we are seeing with time, the velocity is not same. It is not constant, it is changing continuously, as we have given the example. Like suppose you are in a traffic, so sometimes you increases your speed and sometimes it decreases. So that means the velocity time graph, an irregular graph, shows that the object is moving non-uniform or the acceleration is non-uniform in this case. So with the help of these graphs also we can understand the uniform and non-uniform acceleration. अब इसको एक बार हम हिंदी में भी देख लेते हैं कि जैसा कि हम ग्राफ में देख रहे हैं, अगर समय और वेग को हम देखें तो 1 सेकंड का अगर हम समय ले रहे हैं उसमें वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड। जब समय 2 सेकंड हो जाता है तो हमारा वेग हो जाता है 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि समय और वेग में जो परिवर्तन है वो समान चल रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि समान समय में समान रूप से वेग घटता या बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं एक समान त्वरण यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा जो थर्ड हम ग्राफ देख रहे हैं उस ग्राफ में क्योंकि एक इर्रेगुलर लाइन है, सीधी सरल रेखा नहीं है, यानी कि एक वस्तु का वेग असमान रूप से घटता या बढ़ता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक असमान त्वरण है ना। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि अगर एक लंबी दूरी में कार की असमान गति है क्योंकि ट्रैफिक मिलता है रास्ते में, तो कभी वस्तु का वेग ज़्यादा हो जाता है और कभी वस्तु का वेग कम हो जाता है, तो उसका त्वरण एक समान नहीं रहता, त्वरण उसका बदलता रहता है, या हम कह सकते हैं कि एक असमान त्वरण होता है। तो ग्राफ देखकर भी हम बता सकते हैं कि त्वरण समान है या असमान। अब हम प्रश्नों की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि त्वरण किसे कहते हैं और इसकी हमें इकाई स्पष्ट कीजिए। तो वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय क्या है? त्वरण, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और इसका जैसा कि हमें पता है इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम अगर अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करें, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हवाई जहाज पट्टी पर 30 सेकंड में 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग को प्राप्त कर लेता है और इसकी त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हम सेकंड का आंसर देखते हैं। अभी उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक समान और असमान त्वरण के वेग समय ग्राफ को स्पष्ट कीजिए। अभी जैसे कि हमने दोनों ही ग्राफ देखे थे, एक समान और असमान त्वरण। एक समान में आपने देखा था कि वेग और समय के बीच में जब हमने ग्राफ बनाया था तो एक सीधी रेखा आई थी, और जब हमने असमान को देखा तो असमान त्वरण में वेग और समय के बीच में जब हमने ग्राफ खींचा तो एक सीधी सरल रेखा नहीं है, जबकि उस रेखा में एक कर्व है।
अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है कि हवाई जहाज अपनी पट्टी पर 30 सेकंड में 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग को प्राप्त कर लेता है। तो v हमें पता है 200 मीटर पर सेकंड है, u 0 है, टाइम हमें दिया हुआ है 30 सेकंड। तो हमें एक्सेलरेशन या त्वरण निकालना है। त्वरण बराबर क्या हो गया, 200 माइनस 0 आ गया 200 बटा 30। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 6.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है अ कार accelerates uniformly from 5 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds and calculate the acceleration। कि हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। u दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड, समय है 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाएगा v माइनस यू यानी 10 माइनस 5 बटा 5। तो वो आ गया आपका 5 बटा 5 यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी। इजी है, सिंपल है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको इसमें समझाया है। तो होप स्टूडेंट्स आप इसको आसानी से कर पाएंगे और अपनी बुक में से और आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स को अपने आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।